the health webinar, All You Need to Know About COVID-19. I'm Noreen Kashif, health member for the National Council for Mozambique. As we know, the number of COVID cases are increasing day by day worldwide and also in Mozambique. And it's the point in time where we should upgrade our knowledge in order to be able to take better care of ourselves. We are pleased to have the health experts with us today who are going to discuss about this pandemic and share their knowledge. If you have any questions during the session, please try and write your questions in the Q&A box on your screen or in the chat box, and we will try to answer them at the end of this presentation. I would like to introduce Dr. Zeenat Suleiman, who is the Director of Projects and Clinical Programs at the Arkan Health Services East Africa. She's also a member of the Global Task Force working with the AKDN for preparedness and response of COVID-19. Welcome, Dr. Zeenat. Thank you for your time. I would also like to introduce Dr. Irfan Samji. He is the Quality and Patient Safety and Infection Control Liaison at Arkan Hospital, Mombasa, and also a National Council member of Kenya. Welcome, Dr. Irfan. Without taking more time, I would request Dr. Zeenat to begin with the presentation. Thank you, Noreen. यानी मदद सबसे पहले मैं आपके नेशनल काउंसिल के अहदेदारान प्रेसिडेंट एंड नोरीन आपकी हेल्थ बोर्ड की लीड को शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें ये आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका दिया है। जैसे नोरीन ने बताया कि मैं ग्लोबल टास्क फोर्स की टीम के साथ as a technical expert काम करती हूँ। So I want to just talk a bit about जो ग्लोबल टास्क फोर्स ने जो काम किया है और जो काम हो रहा है वो हम सब के लिए एज जमात कैसे इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जानते हैं कि हाज़िर इमाम ने ईद उल फितर के मौके पर हमें एक हिदायत भेजी है जिसमें हाज़िर इमाम ने बहुत क्लियरली कहा है कि हाज़िर इमाम हमारे लिए जमात के लिए कोविड-19 के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने विशेस भेजी थी और उन्होंने हमें हिदायत भेजी कि हम अपनी प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान दें ताकि ये कोविड-19 पेंडेमिक को हम अच्छे से मैनेज कर सकें। और हाज़िर इमाम की हिदायत के साथ साथ नेशनल काउंसिल को भी ये मैंडेट दिया गया है कि नेशनल काउंसिल अलोंग विद द आगा खान हेल्थ बोर्ड आप जमात हम सब के लिए वो काम कर रहे हैं ताकि हमारी कोई भी मुश्किलात हो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नॉलेज में इंक्रीज करें। अगर हमें कोई मुश्किल पहुंच रही है तो नेशनल काउंसिल और हेल्थ बोर्ड वगैरह हमारे लिए मौजूद हैं। सो हाज़िर इमाम ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए जमात के लिए बनाया है और आज मैं और डॉक्टर इरफान आपके सामने आए हैं ताकि हम कोविड के बारे में आपसे बात कर सकें और कोई भी क्वेश्चंस है वो हम आपके जवाब दे सकें। इस प्रीएम्बल के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर इरफान को जो आपसे गुजराती में बात करेंगे वो आपको इनिशियली कोविड की जो है थोड़ी साइंस के बारे में बताए। ओवर टू यू डॉक्टर इरफान। थैंक यू ज़ीनत। याली मदद હું ડોક્ટર ઇરફાન સામજી મોઝામ્બિક જમાતનું ઘણું આભાર માનું છું કે તમે સૌ ટાઈમ લઈ અને અમારું આ વેબિનાર સાંભળવા માટે આવ્યા છો। આજે હું તમને સમજાવીશ કે કોરોના વાયરસ શું છે, કેવી રીતે ફેલાય છે, એના લક્ષણો શું છે, આપણે કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણે કોરોના વાયરસ થઈ ગયું છે, કોરોના વાયરસને રોકવા માટે આપણે શું કરી શકીએ છીએ, સાથે હું તમને સમજાવીશ કે કોરોના વાયરસ માટે વધારે ગંભીર છે અને અંતમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું કે કેવી રીતે કોવિડ-19 સાથે વસવાનું। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ। કોરોના વાયરસ શું છે? કોરોના વાયરસ એક શરદી અથવા ફ્લૂનો વાયરસ છે। આ વાયરસથી જે બીમારી થાય છે તેને કોવિડ-19 કહેવામાં આવે છે, યાની કે કોરોના વાયરસ ડિઝીઝ 2019। આ બીમારીને ઝૂનોટિક કહેવામાં આવ્યું છે, યાની કે જે બીમારી પ્રાણીથી ઇન્સાનને અફેક્ટ કરે છે। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ। કોવિડ-19 એ કોરોના વાયરસનું માન્ય નામ છે। એ કોરોના વાયરસના જે બી રોગચાળો જે ડિસેમ્બર 2019 વુહાન ચાઇનામાં શરૂ થયું એ માટે વપરાય છે। તે કોરોના વાયરસ નવું કોરોના વાયરસ પણ કહેવાય છે।
નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે આ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોરોના વાયરસ દુનિયાના કેટલા વિભાગમાં ફેલાઈ રહ્યું છે. જે આપણે આ સ્લાઇડમાં બ્લુ કલર જોઈ શકીએ છીએ એટલા વિભાગમાં ફેલાઈ ગયું છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દુનિયાના કોન્ટિનેન્ટ્સમાં આ બીમારી લગભગ બહુ જ ફેલાઈ ગઈ છે. અમેરિકામાં સૌથી વધારે છે, એના પછી યુરોપ અને આફ્રિકામાં આસ્તે આસ્તે વધતું જાય છે. આ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મોઝામ્બિકમાં લગભગ 472 કેસીસ થઈ ગયા છે. એમાંથી 132 કેસીસનું ને ઠીક થઈ ગયું છે ને એમાંથી 2નું મરણ થઈ ગયું. ગ્રાફ દેખાડે છે કે આસ્તે આસ્તે કેસીસ વધવામાં છે અને હજી પણ વધી શકે છે. કોરોના વાયરસના લક્ષણો શું છે? વધારે કોરોના વાયરસના મરીઝોને તાવ, ઉધરસ, ગળો પકડાઈ જાય અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફો પડે છે. અમુકને શરીરના દુખાવા, જુલાબ, આંખના ઇન્ફેક્શન થાય છે, માથું દુખે, સ્વાદ હાલ્યું જાય અને સ્કિનમાં પણ રેશ થાય છે. જે બહુ ગંભીર રીતે બીમાર થઈ જાય એને નિમોનિયા પણ થઈ જાય, ફેફસા કામ ના કરે, કિડનીઝ કામ ના કરે અને મરણ બી થઈ શકે. હવે આ કોરોના વાયરસ કેવી રીતે ફેલાય છે? કોરોના વાયરસ શ્વાસના ટીપાથી ફેલાય છે. દાખલા તરીકે છીંક ખાવાથી કે ઉધરસ ખાવાથી જે ટીપા નીકળે એનાથી ફેલાય. અને જો એ ટીપા દરવાજાનું નખુચામાં હોય અથવા બીજી બાજુ હોય જેમાં કોઈ બીજું અડે અને એના આંખ, નાક અને મોઢામાં અડાડે તો એમાંથી એ ફેલાય. આ સ્લાઇડમાં જોઈ શકે છે કે જે માણસ જેને કદાચ કોરોના વાયરસ હોય અને જ્યારે છીંક ખાય તો એના ટીપા કેટલા દૂર સુધી ફેલાઈ શકે છે. કોઈ પણ માણસ જો બાજુમાં હોય તો એને પણ લાગી શકે છે. એના લીધે બહુ મહત્વ છે કે આપણે એકબીજાથી 6 ફીટ દૂર રહે ને જાજા ક્રાઉડમાં ન ફરે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન યાની કે WHO માંથી સલાહ મળી છે કે આપણે કોઈ પણ લક્ષણો હોય તો સૌથી પહેલા ડોક્ટર કે હોસ્પિટલને ફોન કરવાનું અને ડોક્ટરને જાણ કરવાનું. ડોક્ટર સમજાવશે કે હોસ્પિટલ જવાની અને ટેસ્ટિંગ કરવાની જરૂરી છે કે નથી. જો ડોક્ટર ટેસ્ટિંગ કરવાની સલાહ આપે તો આ પ્રમાણે હોસ્પિટલમાં ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. એક સ્વોબ લઈને નાકના ટીપા લેશે અને બીજો સ્વોબ ગળામાં નાખી અને અહીંયાથી શરદીના ટીપા લેશે. બંને સ્વોબ ટેસ્ટિંગ માટે મોકલાવશે. એના પછી 24 to 48 hours સુધી જવાબ મળી શકે. આ વાયરસની કોઈ ઈલાજ નથી. જેવી રીતે કોઈ પણ બીજા વાયરસની પ્રમાણે આ વાયરસની પણ હજી કોઈ ઈલાજ નથી. પણ બીજી અમુક દવાઈ ડોક્ટરો આપે છે જેનાથી આ વાયરસ મરી ન જાય પણ જેનાથી પેશન્ટને ફેર પડે છે અને એનાથી થોડુંક સારું લાગે છે. બહુ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ દવા ડોક્ટરની સલાહ વગર તો બિલકુલ નહીં લેવાની. જે પણ ગંભીર રીતે બીમાર થઈ જાય, દાખલા તરીકે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય તો તેઓને ઓક્સિજનમાં રાખવામાં આવે. અથવા તો જેને એકદમ તાવ હોય તેઓને તાવની દવા ડ્રીપ્સમાં દેવામાં આવે. જેને તાવ હોય તેના લીધે શરીરમાં પાણી પણ ઓછું થઈ શકે છે તો તેઓને ડ્રીપ્સ દેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. કોરોના વાયરસને કેમ રોકી શકાય? સૌથી પહેલા હાથ સાફ રાખવાના, મતલબ સાબુ અને પાણીથી ધોવાનું અથવા તો આલ્કોહોલ હેન્ડ સેનિટાઈઝર વાપરવાનું. તેને ઘડી ધોવાથી આ વાયરસ ઓછું ફેલાય. બીજું કે જ્યારે છીંક કે ઉધરસ આવે તો ટીશ્યુનો ઉપયોગ કરવાનો. તે ટીશ્યુ તુરંત ડસ્ટબિનમાં નાખી દેવાનું અને હાથને સાફ કરવાનું. જો ટીશ્યુ ન હોય તો તમારા કોણીમાં મોઢું રાખી અને છીંક કે ઉધરસ ખાવાનું. આ કરવાથી શ્વાસના ટીપામાં જે વાયરસ હોય તે ન ફેલાય. ત્રીજું કે પેલા જે મેં સમજાવ્યું હતું કે ડિસ્ટન્સ રાખવાનું અને જે કોઈ છીંક અથવા ઉધરસ ખાતો હોય તો તેનાથી દૂર રહેવાનું
એકબીજા સાથે હાથ પણ ન મલાવો, તેનાથી આ વાયરસ ઘણું ઓછું થઈ જાય. જેટલું બને એટલું હાથ સાફ કરી ને પછી મોઢાને અડાડવો, કેમ કે જો હાથમાં કોઈ વાયરસ હોય તો તુરત જ શરીરની અંદર ઘરી જાય. આ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેવી રીતે છીંક અથવા ઉધરસ આવે તો ટીશ્યુનો ઉપયોગ કરવાનો અથવા તો કોણીમાં મોઢું રાખવાનું. એમ કરવાથી વાયરસ ન ફેલાય. બીજું તમે જોઈ શકો છો કે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સિંગ યાની કે એકબીજાથી દૂર રહેવું કઈ પ્રમાણે હોવું જોઈએ. બહુ મહત્વ છે કે બારે ઓછું નીકળવાનું, બહુ જરૂરત હોય તો જ બારે નીકળવાનું. અને બારે નીકળીએ એની પહેલા માસ્ક પહેરવાનું ને માસ્કનો ઉપયોગ કરવાથી આ વાયરસને શરીરની અંદર ગરવાથી રોકી શકશે. માસ્કનો વપરાશ 4 કલાકથી વધારે ન કરવું જોઈએ. માસ્ક જો આપણા પસીનાથી ભીનું થઈ જાય તો એમને તાત્કાલિક બદલાવી લેવાનું. માસ્ક પહેર્યા પહેલે હાથ સાફ હોવા જોઈએ અને માસ્ક પહેરીને માસ્કના આગળના વિભાગને ન અડવાનું. જો માસ્ક રિયુઝેબલ હોય તો એને તુરત જ ધોઈ નાખવાનું અને માસ્ક કાઢીને તુરત હાથને સાબુ અને પાણીથી સાફ કરી નાખવાનું. આનું વિડીયો પણ છે, જેને જોવું હોય તો અમે બંદોબસ્ત કરશું મોકલાવવા માટે. હવે હું મારી કોલીગ ડોક્ટર ઝીનત સુલેમાનને આપું છું કન્ટિન્યू કરવા વાસ્તે. थैंक यू इरफान. सो डॉक्टर इरफान ने हमें बताया कि ये डिजीज जो है कोरोना वायरस कैसे शुरू हुई है, ये कैसे वो कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान को लग रही है, और हम सब मिलके किस तरह से ये कोशिश कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस हम बचा सके अपने आप को और अपनी फैमिलीज को. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अब ये कोरोना जो है वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स बनने वाला है. अभी तक बहुत सारे कंट्रीज में आपके पास भी जो है हम लॉकडाउन और लिमिटेड मूवमेंट, घर से बाहर निकलने की मूवमेंट थी, लेकिन विद टाइम हमें बाहर निकलना है, घर पे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटीज जाना है. सो वी हैव टू नाउ मेक श्योर दैट हम ये समझें कि लाइफ विद कोरोना क्या होगा एंड हाउ डू वी मैनेज आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिलीज. और कोरोना के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, गूगल और इंफॉर्मेशन हमारे पीछे भाग रही है. एंड अब ये वक्त है कि हमसे बैठ के समझे कि एज अ फैमिली, एज इंडिविजुअल, एज जमात के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज को फिर आप ध्यान में रखें और उसी को प्रैक्टिस करें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ वो मेरी डेफिनेशन ऑफ वल्नरेबल पर्सन्स है. हाई रिस्क पीपल, वो लोग जो ज्यादा इस बीमारी की वजह से जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं. आप जानते हैं कि WHO ने हमें बताया है कि 80 to 85% ऑफ कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड एसिम्टोमेटिक, यानी कोई भी उनको किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं होते हैं, जो डॉक्टर इरफान बता रहे थे, और माइल्ड होते हैं, जो आराम से हम घर में मैनेज कर सकते हैं. उसके बाद 15% जो है वो मॉडरेट में आते हैं, सीवियर में आते हैं, जो 10% है जिसमें लोगों को बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है तो दवाइयों की जरूरत होती है, या डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह होता है जो मॉडरेट में होता है. और उसके बाद ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, और जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है 5% ऑफ द पेशेंट्स जो क्रिटिकल होते हैं. लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनकी जो डेथ है वो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनली हो रही है बिटवीन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर के. और जो हमारे वल्नरेबल पीपल, जो जमात के हाई रिस्क पेशेंट्स जमाती मेंबर्स जो हमारे 60 इयर्स और ज्यादा के हैं, हमारे जमाती मेंबर्स जिनको डायबिटीज है, हार्ट, कार्डियक इश्यूज हैं, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी जिसका वेट ज्यादा है, ये सब वो कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो साथ में बीमारियां हैं जो कोविड की वजह से या तो खराब हो जाती हैं या जिनकी वजह से कोविड कंट्रोल में नहीं रहता. तो ये लोग हैं हमारे लिए जिनकी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. प्रेग्नेंट लेडीज, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज, वो भी हमारे इन हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं. और वो जमाती मेंबर्स जिनके पास घर में ज्यादा जगह नहीं है, जो
सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके पास बहुत हेल्दी खाना नहीं है, 3 टाइम का रहने की ठीक जगह नहीं है, तो वो लोग भी इसी वल्नरेबल पर्सन्स के ग्रुप में आते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें मैं बार बार वल्नरेबल या हाई रिस्क जमाती मेंबर्स की बात करूंगी, ताकि हम ये समझ सकें कि यंग पीपल जो बाहर जाते हैं उनको तो अपने लिए प्रिकॉशंस करने ही है, लेकिन उनको वापस अपने घर के अंदर आके अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ध्यान रखना है। और बाय द वे हाजिर इमाम ने भी अपनी लास्ट हमारी जो ईद उल फितर के मैसेज में हाजिर इमाम ने भी हाई रिस्क वल्नरेबल जमाती मेंबर्स का डिस्कशन किया था। सो गोइंग आउट, अगर आपको जाना ही है कोशिश करें ना जाएं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज मत जाएं, अगर जाना ही है तो फिर कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी। सब जेनेरिक प्रिकॉशंस जो डॉक्टर इरफान के डिस्कशन के साथ आती हैं, जैसे कि प्लीज मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए अपने और अपने आसपास के लोगों में 2 मीटर 6 फीट और जितना भी आप रख सकते हैं। हैंड हाइजीन, चाहे हाथ वॉश करें पानी और साबुन से या सैनिटाइजर यूज करें। याद रखिए मेन, MEN, माउथ, आईज एंड नोज, मेन। ये जो है आपकी ट्रांसमिशन के मोड है। अगर आपने हाथ को लगाया अपने नोज से जो ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं या अपनी आईज पे, तो अपने नोज, आईज और फेस को टच करना अवॉइड करें। और ये आसान नहीं है, ये आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि हाथ नहीं लगाना। हैंडशेक्स, गले मिलना, हक करना, ये हमारी कल्चर का हिस्सा है, लेकिन अब हमें इस नए कल्चर को अपनाना पड़ेगा जिसमें हैंडशेक नहीं करना है, हग्स नहीं करने हैं, वगैरह वगैरह। सरफेस की टचिंग, डॉक्टर इरफान ने बताया ड्रॉपलेट्स दूर तक जाते हैं और फिर वो आके सरफेस पे बैठ जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप सरफेस को हाथ मत लगाएं, मिनिमम सरफेस को हाथ लगाएं और इन सरफेसेस की कांस्टेंट क्लीनिंग करें ब्लीच वाटर से। एंड मैं अभी आपको बताऊंगी कि ब्लीच वाटर का कॉम्बिनेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। बड़े बड़े बैग्स ना ले जाएं अगर अवॉइड कर सकते हैं। घड़ी पहनना, सेल फोन रखना, ये सब हमारे लिए बहुत रूटीन है कोविड से पहले, लेकिन अब कोविड के साथ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने बैग्स, वॉचेस, सेल फोन्स वगैरह का ख्याल रखेंगे, और जब आप वापस आएंगे घर तो उसको किस तरह से आप साफ करेंगे। कोशिश करें कि लंबी लंबी स्लीव्स पहने, ताकि जो है वो जब आप घर वापस आए तो वो कपड़ा निकाल के और उसको फौरन वॉशिंग मशीन में डाल दें। और शूज को वगैरह को जब घर आए तो उसको निकाल के बाहर रखें। प्लीज अपने मास्क को, अगर वो वॉशेबल है तो उसको फौरन वॉशिंग में डालें, अगर वो डिस्पोजेबल है तो विदाउट टचिंग द फ्रंट, टच मत करें, पीछे से स्ट्रिंग से निकालें और उसको डस्टबिन में डाल दें। अपने कपड़ों को वॉशिंग में डालें। घर में डाइल्यूटेड ब्लीच वाटर रखें, ऑफिस में ब्लीच वाटर डाइल्यूटेड रखें, जिसमें 1 लीटर ऑफ वाटर में आप 2 टीस्पून ऑफ ब्लीच डालें, रेगुलर ब्लीच जो आपको आपकी मार्केट में मिलता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू कम बैक होम, अपना शावर ले लें और क्लीन कर लें आपको हेड टू टो, and then carry on and then meet with your family and sit with your family members. ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बहुत सारे जमात के मेंबर्स, अगर आप वॉकिंग इज ऑलवेज बेस्ट फॉर हेल्थ, अगर आप वॉक करके जा सकते हैं अपनी जो भी आपकी मंजिल है, काम पे जा रहे हैं या ग्रोसरी करने जा रहे हैं, वॉकिंग इज द बेस्ट। अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, अवॉइड करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, अपनी कार लें, टुक टुक होता है, बस जो छोटी I got this. I'm back. I'm back. Sorry, guys. This was my our internet here.
मैं शेयर कर रही हूँ वापस से वीडियो को. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. आई होप आपको वापस से नजर आ रहा है. नोरीन, कैन यू सी? Yes, it's visible now. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे थे. अगर आप मिनी बस ले रहे हैं तो पीक टाइम को अवॉइड करें. अगर आपको पता है कि सब लोग सुबह काम पे जा रहे हैं 8 बजे, तो आप आधा घंटा पहले चले जाएं या आधा घंटा बाद जाएं. मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, सरफेस को हाथ लगाना, बार्स को हम हाथ लगाते हैं या सीट को हाथ लगाना, तो अवॉइड करें. ग्लव्स पहन लें या टिश्यू पेपर ले लें. अगर ग्लव्स पहन रहे हैं, प्लीज ग्लव्स पहन के ये मत समझे कि आपका हाथ साफ हो गए हैं. उसको अवॉइड करें अपने फेस को हाथ लगाने से, एंड अप्रोप्रिएटली उसको डिस्पोज करें. और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन करें. ग्रोसरी शॉपिंग अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आपको जाना है, अगर कोशिश करें होम डिलीवरी कर सके इफ पॉसिबल. ऑफ कोर्स अगर होम डिलीवरी नहीं है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फुल लिस्ट बना के जाएं और फटाफट जाएं, फटाफट वापस आएं. घूमना फिरना, डब्बों को उठाना, डब्बों को चेक करना, कोशिश करें ये सब अवॉइड करें. सरफेसेस को मत हाथ लगाएं और डब्बों को हाथ मत लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपसे पहले वाले जो साहब और या कोई खातून है जिन्होंने उठाया था, वो हो सकता है कि कोविड पॉजिटिव हो. तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग. ऑल्सो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स. मुझे पता है कि माय मदर, मेरी अम्मी जो है, वो माय मदर इज विथ मी, और वो वेट कर रही है कि कब वो ग्रोसरी शॉपिंग जा सके और अपनी वेजिटेबल खुद खरीद सके, एंड सो फॉर. तो हम अवॉइड कर रहे हैं, उनको समझाते हैं हम कि मम्मी आप नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी सेफ नहीं है एनवायरनमेंट, आप अपनी लिस्ट हमें दे दे. और ये टफ है, लेकिन हमें समझाना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स को. हमारे पेरेंट्स समझते हैं और उनको ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें. अपना बैग, कमिंग बैक टू द सेम अदर पॉइंट्स अगेन, ग्रोसरी शॉप में सुबह में अगर बहुत रश होता है तो ट्राई करें कि अवॉइड करें वो पीक टाइम्स, और नॉन पीक टाइम पे जाएं. वॉशेबल बैग्स ले जाएं अपने साथ, ताकि वो आपके घर में ही आके वॉश हो, तो आपको प्लास्टिक बैग्स वगैरह को हाथ में लगाना पड़े. बट अगर नहीं ले जा सकते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आपके प्लास्टिक बैग्स वगैरह फेंक दें इमीडिएटली. एंड ऑफ कोर्स टचिंग ऑफ द सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको ख्याल रखें कि आप ना करें. पैसा जो है, अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड से सो दैट्स द बेस्ट, मगर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो प्लीज घर पे आके उसको एक साइड पे रख दें, जिपलॉक बैग में रख दें, एंड डोंट टच इट, बिकॉज आपको नहीं पता है कि जो चेंज आपको मिला है ग्रोसरी शॉप से या बस से या जहां से भी, वो कितना क्लीन है, उसकी एक्सपोजर क्या है. सो डोंट टच कैश वंस इट्स कम, जब आप बाहर से आते हैं. तो अपनी बैग्स उसको वॉश कर लें. अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ला रहे हैं, प्लीज वो उसको रनिंग वाटर से क्लीन करें, वॉश कर लें बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग इट एंड ईटिंग देम. एंड जो बॉक्सेस एंड कैंस आ रहे हैं, उसको भी आप अपने एक रग से, जो ब्लीच वाटर है, उससे साफ कर लें. एंड दीज आर सम ऑफ द, ये कुछ ऐसे बेसिक प्रिवेंशंस हैं जो आपको और आपके घर में मेड्स हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये इंस्ट्रक्शंस आप अपनी मेट्स को दें, ताकि ये सब चीजें वो भी करें, एंड यू इंश्योर कि ये हो रहा है. ऑफिसेस, शॉप्स, अगर आप घर में आप अपनी खुद की शॉप्स चलाते हैं या फैक्ट्रीज जाते हैं अगर आप, तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए और अपने कलीग्स को बचाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कॉमन रूम है जिसमें आप 4-5 लोग बैठ के खाना खाते हैं या बातें करते हैं, गपशप होती रहती है, तो कोशिश करें कि वो कॉमन प्लेस को अवॉइड करें. एंड अगेन रिमेंबर द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स शॉपकीपर्स के लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर्स को इनकरेज करें कि वो भी मास्क पहन के आए. ग्लास के मैंने देखे हैं बहुत सारे बैरियर्स रखे हैं शॉपकीपर्स ने, ताकि कस्टमर्स और आपके बीच में जो है वो एक ग्लास का बैरियर आ जाए. आप अपने सरफेसेस को क्लीन करें, हैंड जेल रखें अपने लिए भी और अपने कस्टमर्स के लिए भी, और लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स को आने दें. इस तरह से करें कि आपका बिजनेस ऑफ कोर्स अफेक्ट ना हो, लेकिन आप 5 आदमियों को या 10 को आने दें, थोड़ों को रोकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आने दें. बट ये ऑल डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की बिजनेस चला रहे हैं. फैक्ट्रीज में जब आप काम करते हैं, देखें कि कितना आप डिस्टेंस रख सकते हैं. और अगर फैक्ट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है और अगर आप साथ साथ हैं,
प्लीज वेल वेंटिलेटेड फैक्ट्रीज रखें, वेंटिलेशन का ख्याल रखें, हवा आने दें दो तरफ से, ताकि दैट आल्सो हेल्प्स इन इन अ स्पेस जो अगर क्राउडेड है। चाय का कप, प्लेट, स्पून्स एक्सेट्रा अलग रखें, अलग बैठ के खाइए। सरफेस और मास्क और डिस्टेंस वगैरह सेम ही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लिफ्ट्स हैं, अगर आपकी ऑफिसेज वगैरह में लिफ्ट्स हैं, आपके घर के कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट्स हैं, वॉक कर ले, बेटर फॉर यू ऑफ कोर्स। बट अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं, अवॉइड टचिंग सरफेसेस, टिश्यू पेपर से बटन दबा दें या अपने नीज अपने एल्बो को यूज करें और उससे जो है आप बटन यूज कर सकते हैं। सो अगेन रिमेंबर, अवॉइड सरफेस टचिंग। आपके पेरेंट्स को, आपके आपके जो बुजुर्ग हैं उनको ये बार बार बताइए कि जब वो किचन की तरफ आते हैं तो हर चीज को हाथ न लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी मेट्स भी वहां पर हैं, अगर हैं तो, और अगर आप काम से आ रहे हैं तो आप और आपके पेरेंट्स साथ साथ हैं, तो दूर रखें अपने पेरेंट्स को भी। खाने के टेबल पे आप अगर अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा डिस्टेंस पे बिठा सकते हैं क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। आपने WHO का अभी रिसेंट देखा है कि WHO कह रही है कि वल्नरेबल पेरेंट्स को, वल्नरेबल पेशेंट्स को और वल्नरेबल जमात के मेंबर्स को प्लीज मास्क दें। तो encourage करें आपके पेरेंट्स को भी कि घर में भी मास्क पहने। There is nothing wrong in doing that, and hand washing and surface cleaning stays there. मैं जमाती मेंबर को ये रीइंफोर्स करना चाह रही हूँ कि कोविड कोई स्टिग्मा नहीं है, बहुत फ्लू है, फ्लू की तरह का डिजीज है, बहुत लोगों को फ्लू होता है, कोविड होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जमात के लोगों को सपोर्ट करें जिनको ये अगर कोविड होता है तो, क्योंकि और मैं बात करूंगी कि कोविड कितने दिन चलता है, ये जिंदगी भर चलने वाली कोई और वो ये कोई बीमारी नहीं है कि ये जिंदगी भर चलेगी और जिंदगी भर एक दूसरे को देते रहेंगे। प्लीज आप अपने लिए असिस्टेंस ले कॉल करें, अपने हेल्थ बोर्ड को कॉल करें, अपने नेशनल काउंसिल के अहदेदारान को फोन करें, एंड जब आपको लगता है कि आप किसी के कांटेक्ट में हैं या आपको साइन इन सिम्टम्स हैं, आई विल टॉक अबाउट इट इन अ मिनट, प्लीज आइसोलेशन प्रोटोकॉल को मैनेज करें। सो व्हाट आर दीज आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स? अगर आपको वो सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि आपके कांटेक्ट में आए हैं, आप किसी से, आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको माइल्ड या मॉडरेट के, या आपने टेस्ट करवाया है और पॉजिटिव है आप और आप माइल्ड है, रिमेंबर मैंने अभी कहा ये जिंदगी भर की डिजीज नहीं है, ये लिमिटेड 14 डेज। इनफैक्ट WHO ने बहुत रिसेंटली उसको भी नीचे करके 10 दिन कर दिया है, लेकिन बहुत सारे अफ्रीकन नेशनल गाइडलाइंस एंड मोज़ाम्बिक गाइडलाइंस इस वक्त 14 डेज की है। तो यू नीड टू डू 14 डेज सेल्फ आइसोलेशन अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, अगर आपकी डिजीज मीडियम या सीवियर या क्रिटिकल नहीं है। सो अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, प्लीज वेंटिलेशन इज इंपॉर्टेंट। खिड़कियां खोलें, ओपन खिड़की में देखें, लंबे लंबे सांस लें, लेट फ्रेश एयर कम इनटू योर लंग्स। अपने आप को अपने दूसरे घर वालों से दूर करें, सेपरेट बाथरूम में, सेपरेट बेडरूम में रहें जितना रह सकते हैं, और अगर नहीं रह सकते तो प्लीज डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, खुद भी मास्क पहने, अपने घर वालों को भी मास्क पहनाएं। डिस्पोजेबल अपने लिए जो है, अगर आप पॉजिटिव है या कोई फैमिली मेंबर पॉजिटिव है, कोशिश करें कि डिस्पोजेबल मास्क दें, लेकिन अगर नहीं एक्सेसिबल है तो ऑफ कोर्स आप कपड़े का मास्क यूज कर सकते हैं। हाउस होल्ड क्लीनिंग, ब्लीच आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। मेक श्योर करें कि आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, नॉब को, बाथरूम जाते हैं अगर सेम बाथरूम यूज हो रहा है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किचन, बाथरूम और दूसरी चीजों को मिनिमम टच करें, और अगर टच हो रहा है तो उसकी बहुत स्ट्रिक्ट सरफेस डिसइंफेक्शन करें। अपने कपड़ों को अलग साफ करें, अपने बेडिंग को अलग धुलवाएं और दूसरे घर वालों से अलग रखें। अगेन हमारे बूढ़े बुजुर्गों से दूर रहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है आपके घर में, प्लीज अपना डिस्टेंस उनसे ज्यादा रखें। विजिटर्स को दूर रखें। फ्रेंड्स और फैमिली समझते हैं ये दीज आर अ बिट डिफरेंट टाइम्स, सो आई एम श्योर कि वो लोग ये बात समझेंगे। अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब है कि आप अभी भी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं और आप खुद से अपना टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं या अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं,
और अगर एक फैमिली मेंबर को असाइन करें, ऐसे नहीं कि सब पे सब आके आपकी तीमारदारी कर रहे हैं, एक फैमिली मेंबर को असाइन करें, मेक श्योर करें वो फैमिली मेंबर भी कंप्लीटली प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पीपीईस आपने सुना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ले रहे हैं, मास्क पहनना, अगर अगर ऐसे कपड़े पहनना जो फौरन निकाल के धोने में डाल दे, हैंड वॉशिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर करें कि आपके घर वाले जो आपका ख्याल रख रहे हैं या उस बीमार बंदे का ख्याल रख रहे हैं वो भी अपना टेम्परेचर ट्वाइस अ डे ले, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उनके पास ये कोई सिम्टम्स ना आए। अपने ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का, रेगुलर मेडिकेशंस, देखिए मैंने बताया, डॉक्टर इरफान ने बताया कि ये एक वायरस फ्लू की तरह से है, तो गले की बीमारी लॉजेंजेस रख लें, पैरासिटामोल्स ले लें, टेम्परेचर्स हो रहे हैं, टेम्परेचर्स बहुत अप एंड डाउन होते हैं, सो ऐसा ना समझे कि बस एक ही पैरासिटामोल में खत्म हो जाएगा, थोड़ा पीरियड रेगुलरली पैरासिटामोल लीजिए। उसके अलावा पानी, बहुत सारा पानी, जूसेस लीजिए, मडाफ, कोकोनट अवेलेबल है तो वो पीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, एंड अच्छी नींद, स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड रिकवरी। अगर आपके सिम्टम्स घर में रहने से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आपके टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, आपको शिवर्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, आपकी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, प्लीज इमीडिएटली सीक हेल्प एंड गो टू अ हॉस्पिटल। आपको किसी हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो कि आपकी जमात में वो पोर्टेबल SpO2 मॉनिटर मौजूद है, बहुत सारी जमात ने वो चाइना के छोटे छोटे अवेलेबल कर लिए हैं। अपनी सेचुरेशन देखें, 94 95 से अगर वो नीचे जा रहा है 94 से ऑन रूम एयर, तो टाइम टू कॉल अ हॉस्पिटल। सो सम ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जब आप घर से बाहर जाएं प्लीज मास्क पहने, और सबके सब पूरी फैमिली मत जाइए, वही एक केयर गिवर के साथ आप जाइए। क्वारंटीन 14 दिन की है, इट इज नॉट फॉर एवर एंड एवर, सो ये पनिशमेंट बहुत डिफिकल्ट है, 14 दिन भी रखना अपने आप को दूसरों से दूर इज नॉट इजी, बट इट इज फॉर लिमिटेड पीरियड, दैट्स अ गुड न्यूज। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि अगर 14 दिन के बाद आपकी जो सिम्टम्स हैं, बुखार, कॉफ, स्नीजिंग, वो 72 आवर्स आप उससे बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो मेक श्योर करें कि आपके सिम्टम्स 72 आवर्स तक आपने नहीं देखे हैं। प्लीज एक लॉग रखिए, लॉग बुक रखिए, अपना टेम्परेचर ट्वाइस अ डे कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप अब विदाउट एनी सिम्टम्स हैं। बट ऑफ कोर्स अपने हेल्थ बोर्ड के मैनेजर्स, क्लस्टर मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स से भी कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको कोई इशू हो तो आप उनसे फौरन बात करें। ये तो कुछ सिंपल क्लियर डिस्कशंस और गाइडलाइंस हैं कोविड के साथ रहने की। हमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, लोग पूछते हैं, जमात पूछती है हमें, और बाय द वे ग्लोबल टास्क फोर्स ने भी हमें ये कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन मैं आपको रीइंफोर्स करवा रही हूँ कि जी अगर हम स्टीम ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, हल्दी डाल के पी रहे हैं, और गार्लिक, जिंजर और गार्लिक खा रहे हैं, अदरक इज वेरी फेमस वगैरह वगैरह, शावर ले रहे हैं, तो क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? नहीं, प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सम ऑफ दीज थिंग्स, फॉर एग्जांपल हल्दी, हनी, शहद, हनी, हल्दी, जिंजर, ये डेफिनेटली कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो सकती है, और इम्यूनिटी इंक्रीज करने से हम फाइट कर सकते हैं अगर वायरस हमारे पास आ जाता है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए तो हमें वही 4 चीजें करनी है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, हाथ वॉश करना है, और सरफेस क्लीनिंग करनी है। लेकिन ये चीजें आप यूज कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप यूज कर रहे हैं, मगर उससे कोई क्योर नहीं होता है। देयर इज नो क्योर, एज वी हर्ड फ्रॉम डॉक्टर इरफान अर्लियर, मगर उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। मस्कीटो बाइट्स नहीं देते हैं, डॉग्स नहीं देते हैं कोविड, स्प्रेइंग अल्कोहल और क्लोरीन ऑल ओवर योर बॉडी, हमने देखा है वो ऐसी स्क्रीन बनी हुई है कि लोग क्रॉस करते हैं, कुछ हमें स्प्रे आते हैं, दीज थिंग्स डोंट किल कोविड, ओके। सो आपकी फैक्ट्री में ऐसी कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल फॉर दैट। गार्लिक की मैंने बात ऑलरेडी कर ली है।
एंटीबायोटिक्स क्या ये इफेक्टिव है? बहुत लोग पूछते हैं कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाना शुरू कर दें, विल वी बी एबल टू अवॉइड और प्रिवेंट, हम एंटीबायोटिक्स शुरू कर दें? आंसर इज अ बिग नो. These things are not preventative, these are symptomatic. अगर हो जाता है कोविड तब दिया जाता है, and that is when your doctors and your healthcare personnel will tell you about it. एक इंटरेस्टिंग नई चीज आई है कि आप 10 मिनट तक अगर अपने आप को सांस रोक सकते हैं विदाउट कॉफिंग तो आपको कोविड कभी नहीं होगा. अगेन these are good things, क्योंकि remember लंबे सांस लेना, सांस रोकना, ये some of these lungs exercises है, जरूर कीजिए, बट इससे आपकी प्रिवेंशन नहीं होगी. So these are some of the questions which we wrote. One of the things which I would like to reinforce, and that is maids. हमारे कल्चर में हमारे घर में maids होती हैं, हाउस हेल्प्स होते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये सारी प्रिकॉशंस हमारे हाउस हेल्प और मेड्स को बताएं. अगर हमारी हाउस और हेल्प और मेड्स घर पे रह सकते हैं हमारे साथ विदाउट गोइंग, कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता है, और हम कितने टाइम तक रख सकते हैं, कभी ना कभी दे हैव टू गो बैक और गो टू देयर होम्स, उनके भी बच्चे और फैमिलीज हैं. इन दैट केस प्लीज गिव दीज, शेयर दीज इंस्ट्रक्शंस विद देम. अगर वो भी ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं तो उनको मास्क दीजिए, उनको डिसइंफेक्शन दीजिए, डिसइंफेक्टेंट्स, हैंड सैनिटाइजर दीजिए, ताकि वो अपना ख्याल रख सकें. अगर वो सेहतमंद होंगे तो आपके घर आके वो कम से कम आपको एक्सपोज करेंगे. जब वो घर पे आते हैं प्लीज अपने पेरेंट्स, अपने एल्डरलीज को बताइए कि मेड से दूर रहें. ओके, जितना कोशिश करें उनको दोनों को किचन में साथ ना रखें. अगर मेड्स जो है वो अपनी सरफेस क्लीनिंग करवाएं ज्यादा से ज्यादा, घर के अंदर भी, जैसे आपको मैंने कहा useful hoga. So with that, I will stop here, Dr. Irfan, and we are available for any questions if you have. Thank you so much, Dr. Zina, Dr. Irfan, for your knowledge. It was very comprehensive, and I think a lot of questions आपने पहले ही answer कर दिए जो आने वाले थे related to the COVID. But we are still open for question and answers. अगर audience को कोई भी question है, आप लिख सकते हैं Q&A box में या chat box में, and they are here to answer your queries.